Hello everyone, this is Aditya and आज हम लोग gravitation in a one shot कंप्लीट करेंगे using this ball. So now let's start the lecture, but before that please you like, share, subscribe my channel and please support the video. Now let's start. तो gravitation होता क्या है? Well, मैं एक simple सा example लूंगा. मान लीजिए आपके पास दो objects हैं, एक O1 है and एक object O2 है and assume करते हैं इन दोनों masses M1 के हैं and M2 के हैं, right? Okay. So due to their masses, they both will experience a force which is called gravitational force, right? एंड उसे हम लोग इस मैग्नीट्यूड से देते हैं, राइट? ओके, सो इसका मतलब इस पे एक फोर्स लगेगा ड्यू टू देयर मासेस व्हिच इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये डेफिनेशन बेसिक टर्म्स में बात करूं तो. एंड अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ये आर स्क्वायर क्या है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मासेस, नॉट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मासेस, राइट? सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, राइट? ओके, अच्छा ये तो बात हो गई कि आर क्या है, एम हम लोग पता है कि मासेस है, एफ हम लोग पता है फोर्स क्या है, जी क्या है? जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? ओके, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? You can derive it also, it is easy. You get G is equal to FR square by M1 M2, right? So basically Newton into meter square per kg square. और अगर आपको इसे मास, लेंथ एंड टाइम की रिस्पेक्ट में करना है तो सिंपली आप कर दीजिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 11 एंड न्यूटन होता है केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, राइट? Divided by kg square, so it becomes 6.67 into 10 to the power negative 11. It will become kg to the power negative 1 kg inverse meter cube per second square, right? So ये यूनिट यहाँ से बन जाता है. अच्छा, मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं ये यूनिट बताई? बिकॉज मैं चाहता था कि इसे मैं डिराइव करके बताऊं जिससे कि आप यूनिट भूले ना, राइट? So if you forget this unit, I mean this one, you can easily derive it from this, and if you forget this also, you can derive it from formula, right? So basically it is just the application of units and dimensions, right? Nothing else, right? तो यहाँ से आप इसके डायमेंशन बता सकते हो. what it be? It will be m minus 1 L3 T minus 2, right? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है जो कि बहुत एग्जाम से पूछी भी जाती है. So it is good to remember it, right? If you don't remember, just derive it. It is very simple. I don't say to learn anything. Just derive it, right? It's easy. So in basic terms, अगर मैं explain करूँ, suppose you have two bodies, two balls, and you keep it in free space in vacuum in isolated condition, then they both will exert force on each other due to their masses, which is called gravitational force. Understood or not, right? And of course we are dealing the Newton's mechanics over here, not the general theory of relativity. Remember it, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ग्रेविटेशन के, राइट? We will discuss it in some other video. Of course, I will make a one shot on general theory relativity, but it is not related to 11th 12th syllabus. It is really high level, right? But I will make it in 1 or 2 months, okay? But let's come back to the topic. अच्छा, ये तो बात हुई ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? मैंने कह दिया मास की वजह से होता है, लेकिन मास की वजह से क्यों होता है उसके लिए हम लोग समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड. अच्छा, तो ये अब क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी मास हो, इट रेडिएट्स अ फील्ड लाइक दिस परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑलवेज, and due to this field it has a tendency to attract the masses, and it is possessed by any body in this universe, of course with me also, with anyone in this universe. यहाँ पर ये फील्ड सब बॉडी साथ है जिनके पास ये मास है, राइट? सो इसका मतलब अगर एक बॉडी है एंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट? सो इट विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट, राइट? ऑफ कोर्स पॉजिटिव मासेस दोनों के होने चाहिए. Yeah, of course, I should not say positive mass because you know only mass right now. There's something called negative mass also, but it is an hypothetical concept, so I won't discuss about that. So mass का मतलब positive mass लीजिएगा, okay? So इन दोनों बीच attraction होना start हो जाएगा due to this gravitational field, right? So ये reason होता है. And gravitational field हम लोग कैसे देते हैं? Gravitational field is given by Ig is equal to Gm by r square. This is the distance, this is r vector, and this is the mass, okay?
सो बेसिकली अगर आपके पास एक और सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, एक अगर आपसे एक बहुत ही ज्यादा मास का पार्टिकल है एंड एक टेस्ट मास है, टेस्ट पार्टिकल है। टेस्ट पार्टिकल क्या होता है, टेस्ट मास क्या होता है, बेसिक जिसका मास बहुत कम हो, मास उसका बहुत कम होना चाहिए एंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका मास m है एंड इसका एक स्मॉल मास m मान लेते हैं, तो इन दोनों फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये लग रहा होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, तो F बाय टेस्ट मास इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई जी, राइट। अच्छा, now you understood that if you know the force and the mass of test particle, you can easily find the gravitational field. एक कॉन्सेप्ट आता है नल पॉइंट का। नल पॉइंट क्या होता है, वेल एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए। बेसिकली अगर मान लीजिए ये दो मासेस हैं आपके पास एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट। एंड एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में, सपोज ओवर हियर, जहां पर जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो जीरो है। तो हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढते कैसे हैं, वेल लेट्स सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग टेस्ट मास रखेंगे m का, स्मॉल m का, राइट। एंड हम लोग कह देंगे इसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशन फील्ड कितनी लग रही होगी, इट विल बी अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में जो IG1 होगा वो क्या होगा, GM1 बाय, एंड सपोज ये डिस्टेंस जो है इट इज x, राइट, ओके, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये वाला मास भी इसे अट्रैक्ट करेगा, सो इट विल बी गोइंग लाइक दिस एंड दिस डिस्टेंस इज r माइनस x, करेक्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो IG2 क्या होगा, GM2 बाय r माइनस x स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब क्योंकि इन दोनों का जो नेट सम है वो जीरो होना चाहिए, राइट, hence we get IG1 minus IG2 is equal to 0, which means that gm1 by x square is equal to gm2 by r minus x square. So g and g gets cancelled, so from this you get you will get from here that r minus x by x whole square is equal to m2 by m1, correct, सही है। तो r माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू रूट m2 बाय m1, राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी पॉजिटिव ओनली, नो नेगेटिव हो गया। तो r बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट m2 माइनस m2 बाय m1, so we get r by x is equal to 1 plus root m2 by m1, right. So from this, if you want to evaluate it further, you will get that x is equal to r by 1 plus root m2 by m1, right, okay। यहाँ से आप लोग नल पॉइंट निकाल सकते हो कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो अगर m2 की वैल्यू सपोज मैंने 4 kg दी है एंड यहाँ पे 2 kg दी है, तो 4 by 2 will be what, it will be 2, so 1 plus root 2, it will be 2.4 something, so x will be at r by 2.4, right, this will be at this will be r by 2.4 and this will be r minus r by 2.4, right, like this। तो ऐसे नल पॉइंट मिलता है, राइट, अंडरस्टूड, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वेल इन रियलिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा कोई टर्म होता नहीं है, व्हाई, बिकॉज बेसिकली वो भी एक तरह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। क्यों, हम लोग मानते हैं कि एक पार्टिकल है, एक मतलब बड़ा पार्टिकल है एंड एक टेस्ट पार्टिकल है, so it is the energy or you can say which is required to bring it from infinity to a point in the vicinity of this greater particle, right। तो basically यहाँ पर ये कहना कि it is potential थोड़ा गलत हो जाता है, it is also potential difference, just the difference from infinity to this point। तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, so it's okay। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज गिवन बाय u बाय, और यू कैन से v इज इक्वल टू नेगेटिव gm बाय द डिस्टेंस, राइट, जस्ट दिस, जस्ट द डिस्टेंस, राइट। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वेल अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों है, मुझे आप लोग कॉमेंट बताइएगा एक बार, बट इट इज सम रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, सोच के मुझे कमेंट में बताइए, राइट। ओके, सो अब आता है ग्रेविटेशनल, लिख क्यों रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट ओनली। तो ये पार्टिकल है, राइट, एंड इस पार्टिकल की जो इनिशियल डिस्टेंस है, आई मीन ये वाला जो टेस्ट पार्टिकल है, ये मेन पार्टिकल है, तो इसके बीच की इनिशियल डिस्टेंस r1 थी, एंड ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होके यहाँ आ गया, ये r2 पे आ गया, राइट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल क्या है, नेगेटिव gm/r2, करेक्ट, माइनस माइनस इनिशियल वन gm/r, राइट। so it is negative gm/r2 minus g, I mean plus gm/r1, राइट। तो ये बन जाता है, करेक्ट है, सही है, करेक्ट है ना, ओके। तो बेसिकली जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे जो भी डेटा है वो आपको मिलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना रहेगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, v2 माइनस v1 जो भी कॉन्सेप्ट है, vf माइनस vi कह सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, it is basically v times the mass of this test particle, so it is equal to u, so u is equal to g negative gmm by r, right। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव क्यों होती है, अगेन मैंने कहा कमेंट में आप लोग बताइएगा मुझे, राइट, ओके। अच्छा, तो फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अच्छा इसे मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे लेता हूँ, वो लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आपको मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दिया। तो अब थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एक पार्टिकल है अर्थ पे, अर्थ पे है या किसी प्लेनेट पे है जिसका मास m है, पार्टिकल का नहीं, प्लेनेट का मास m है, एंड उसका रेडियस मैंने मान लिया कि r है, मान लिया, क्या दिक्कत है उसमें। तो उसके सरफेस से हम लोग को एक पार्टिकल को ऐसे फेंकना है सच दैट इट गोज टू इंफिनिटी, मतलब वो एस्केप कर जाए उस प्लेनेट को, हेंस इट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट। अच्छा, तो हम लोग को बेसिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट हम लोग पार्टिकल को ऐसे फेंकना सच दैट इट गोज टू इंफिनिटी, राइट। तो वो हम लोग कैसे पता लगाएं कि हम लोग कितनी उसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन का, राइट। एंड हमने अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एंड काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान ले रहे हैं कि जीरो हो रही है वहां पे जाकर, ठीक है। तो k प्लस यू क्या है, 0 जूल है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, राइट। तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट ऑल्सो, एट एनी पॉइंट इन दिस जर्नी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई हो नहीं रहा है, एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब जो k प्लस यू का जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, हेंस हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm, दिस इज द मास स्मॉल m and this is the mass of this particle, right, by r should be equal to 0. Why? Because again the sum is equal to 0, that is the mechanical energy is 0, right. So you solve this expression, you will get v is equal to root 2gm by r, right, okay. तो इतनी वेलोसिटी हम लोग को चाहिए होगी मिनिमम टू सेंड दिस पार्टिकल टू इंफिनिटी, बेसिकली टू एस्केप दिस पार्टिकल such that at infinity its velocity becomes equal to 0, right। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। एंड अगर इससे ज्यादा हम लोग देंगे तो यहाँ पर इंफिनिटी में उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तो इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग ब्लैक होल्स इससे बना सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम लोग वेलोसिटी को c के इक्वल कर दें तो यहाँ से हम लोग समथिंग कॉल्ड श्वार्ज़शील्ड रेडियस मिलता है, विच इज इक्वल टू c इज इक्वल टू रूट 2gm by r। It means that c square r is equal to 2gm, so r is equal to 2gm by c square। अच्छा, अब वेलोसिटी इज इक्वल c क्यों लिया, बिकॉज ब्लैक होल्स आर बेसिकली द एंटिटीज जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, ऐसा हम लोग कहते हैं, बट देयर सम अदर things which are found in black holes that prove that light can escape using certain means, but we won't discuss about them। तो बेसिकली वेलोसिटी को c से रखा है क्योंकि मुझे एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट चाहिए।
तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मिलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी रेडियस हम लोग कितनी करनी पड़ेगी, राइट? So for Earth, it's like 10 to 11 centimeters, I guess, and for Sun, it is like some 1 or 2 kilometers. I don't remember the exact data, but it is something more or less something like this. Okay, so this is how things happen. अच्छा, बात तो ये हो गई कि अगर हम लोग इसे सरफेस से फेंक रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रहे या थोड़ा सा नीचे रहे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर कितना लगता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. वेरिएशन ऑफ gravitational field, right? Okay, so it varies by height. You can change it due to height, right? Due to height, whatever. तो बेसिकली ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है, कैपिटल R मान ले रहे हैं आप. पार्टिकल यहाँ पर कहीं है, थोड़ा सा ऊपर है उस प्लेनेट के, सपोज एट अ डिस्टेंस x, राइट? मान लिया, मान लेते हैं क्या हुआ. तो इसका मास को मतलब नहीं, क्योंकि IG तो होता है, IG इज इक्वल टू GM बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये होता है, करेक्ट है. अच्छा, तो इसका मतलब जो मास ऑफ प्लैनेट है वो तो कैपिटल M ही रहेगा, भले वो थोड़ा सा ऊपर है. तो इसका मतलब वो क्या होगा, GM बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट प्लैनेट सेंटर ऑफ मास, राइट? तो ये बन जाता है, राइट? करेक्ट है. अच्छा, तो बेसिकली फ्रॉम दिस टू दिस, राइट? अंडरस्टूड. ओके, तो बेसिकली अगर एक प्लेनेट है तो उसका वेरिएशन ऐसे होता है. तो मान लेते हैं, इसमें बहुत बार जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एक्स, राइट? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है. तो यू कैन से फ्रॉम दिस दैट जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाय आर होल स्क्वायर. So we get g dash is equal to gm, that is gm by r square is g by 1 plus x by r whole square. ये बनेगा, करेक्ट है. So this is due to the variation in height, right? अगर हम लोग सरफेस के ऊपर से जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं बेसिकली. एंड सेकंड क्या होता है, डेप्थ, राइट? तो डेप्थ क्या होती है, बेसिकली हम लोग प्लैनेट के अंदर हैं तब क्या होगा. तो बेसिकली जब हम लोग प्लैनेट के अंदर रहते हैं, तो जितना मास हम लोग के नीचे है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाने को, राइट? एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो भी मास प्लैनेट यहाँ पर, जो भी मास ऑफ द प्लैनेट हम लोग के अंडर है, बस वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशन फील्ड के लिए, नॉट दिस आउटर रीजन. तो मान लेते डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है रो, इट इज इक्वल टू मास बाय 4/3 पाई r क्यूब. ये रेडियस r मान लिया, ये रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया, मान लेते हैं, ठीक है. हेंस वी गेट जो मास है वो होता है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और जो m डैश होगा, ये जो ये वाला मास होगा, इट विल इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू r माइनस, सॉरी, इंटू r क्यूब, राइट? ये होना चाहिए, राइट? ओके, करेक्ट है. अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस देने की जगह दे गिव द डेप्थ वैल्यू दिस r. So instead of taking this as r, I am taking this as r, right? Your distance r. So it will become r minus r, right? Your distance, तो r minus r हो जाएगी. क्लियर बात है? अरे जब ये डिस्टेंस r है तो अंदर डिस्टेंस क्या होगी, r minus r हो जाएगी, करेक्ट है. तो m dash will be equal to rho into 4/3 pi into radius cube into 1 minus r by r cube, right? ये क्या है, ये मास है, दिस वन, कंप्लीट मास ऑफ द प्लैनेट. तो हम लोग यहाँ से मिला m डैश इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस r बाय r होल क्यूब, ये मिलना चाहिए. अच्छा, जो फोर्स, अब यहाँ पे फोर्स की बात नहीं करते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड की बात करते हैं. इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, और g डैश कह दे रहे हैं सीधा सीधा, g डैश इज इक्वल टू gm डैश बाय r माइनस r होल स्क्वायर. So it becomes, what is m dash? It is m into 1 minus r by r cube divided by the quantity. You can take r in this common, so you get r square into the quantity 1 minus r by r, right? Square. So this and this gets cancelled. So we get g dash is equal to g
इंटू 1 माइनस आर बाय आर, राइट। यहाँ से ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन, राइट। तो ऐसे डेप्थ का चेंज होता रहता है, राइट। डेप्थ इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, नॉट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस। सरफेस इज द डिस्टेंस, राइट। अंडरस्टूड, ओके। तो ये हो गया, ये बात होगी यहाँ पर। एंड एक चीज और डिस्कस यहाँ कर लेते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड हो गया, राइट। एक चीज और इस पर डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड, वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, राइट। वो कैसे होता है? अगर आप लोग इक्वेटर पे हैं तो जो एंगल है इक्वेटर का वो 0 डिग्री है विद एनी लैटिट्यूड, मीन्स हम एंगल अबाउट इक्वेटर देखते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई एक बॉडी यहाँ पर है जो एक लैम्डा एंगल पे है, तो जो जी डैश आता है इट इज इक्वल टू जी माइनस आर द रेडियस ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा स्क्वायर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर लैम्डा, राइट। ये आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब जो पोल्स है वहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा, तो वहां पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड इक्वेटर में लीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट। इसलिए, राइट। सो ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये तो बात होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इन सब केसेस में क्या होती है। एक अगर मैं रिंग की बात करूं, एक रिंग के केस में विच हैज अ मास m, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, राइट। तो एक एनी पॉइंट x फ्रॉम हियर एंड इट हैज अ रेडियस r, रेडियस r, राइट। इस पे कितना फोर्स लगेगा? इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू व्हाट, जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, राइट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? सोचिए, एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, जो फोर्स होता है इट इज नेगेटिव डी यू, दैट इज नेगेटिव डी यू बाय डी एक्स होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड फोर्स का ये रिलेशन है। तो बेसिकली जो पोजीशन ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और एनी पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स, राइट। अंडरस्टूड। सो अगर आप लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। अंडरस्टूड, सिंपल है ना, राइट। पर दिस इज द IG वैल्यू, राइट, नॉट द फोर्स वैल्यू। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने मास यहाँ पे इसका नहीं कंसिडर किया है। सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है ना, सिंपल है ना, ओके। So this is the concept, you can check it also, right? If you want you can prove it also, and I'm not giving the proof right now. If you want it I will give the proof also, but not in this video, in some other video, right? So basically this is the distance and this is this, okay. So this is the value and from this you can derive this expression also, right? Okay. अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं? वेल, हम लोग यहाँ से एक और चीज कह सकते हैं, F क्या होता है? इट इज इक्वल टू m टाइम्स दिस होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रूव किया था F बाय m इज इक्वल टू IG, राइट। एंड U मैंने क्या प्रूव किया था? इट इज इक्वल टू VM, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग मिलेगा जो IG है इट इज नेगेटिव dV बाय dx, राइट, करेक्ट, अंडरस्टूड, ओके। So basically the position gradient of gravitational potential is equal to the gravitational field, right? So this is as simple as that, okay. So now let's see some other concept. Basically this was the concept which was left, so I thought to discuss it right now, okay. तो यही सा कॉन्सेप्ट है एंड एक हॉलो स्फीयर वगैरह केस आता है तो वो भी देख लेते हैं। हॉलो, ये एक हॉलो स्फीयर है, राइट, हॉलो स्फीयर ये हो गया, राइट। तो हॉलो स्फीयर केस में क्या होता है, यहाँ पर एक अगर बॉडी है तो इस पे जो ऑफ कोर्स आप लोग फोर्सेस के बारे में तो पता ही क्या होगा, फोर्स तो आप लोग पता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ये IG होगा, GM बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सरफेस पे होगा GM बाय कैपिटल R स्क्वायर, दिस रेडियस, एंड अगर अंदर होगा तो अंदर IG की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? अब वो भी हम लोग इसी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई? बिकॉज जो अंदर पोटेंशियल है वो क्या होता है, इट बिकम्स कांस्टेंट, इट बिकम्स नेगेटिव GM बाय R ओनली, राइट। अंदर वो नेगेटिव ही रहता है, आई मीन इट बिकम्स नेगेटिव GM बाय कैपिटल R ओनली। मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल रहता है एक हॉलो स्फीयर में, वो अंदर ही वही पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसका मतलब वहां पर dV बाय dx 0 बन जाएगी, क्योंकि वहां कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इससे IG की वैल्यू 0 आ जाती है। अंडरस्टूड?
अच्छा ये तो बात होगी एक हॉलोस्फीयर के केस में, एंड हाँ यहाँ पे वी भी, यहाँ पर इस वाले पॉइंट वी इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम बाई आर होगा, राइट, एंड अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो बात होगी हॉलोस्फीयर की। एक सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर केस अभी हमने डिस्कस किया कैसे कैसे वेरिएशन होता है ग्रेविटेशन फील्ड का, आईजी का, उसकी डेप्थ के साथ कैसे होता है, उसके साथ कैसे होता है, ये तो हम लोग पता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग को पता है कि सॉलिड स्फीयर केस में एक ही वाला केस होगा, एक आर पे होगा। अरे अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर, एक प्लैनेट सॉलिड स्फीयर, तो अभी हमने डिस्कस किया था कैसे वेरिएशन होता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, राइट। ये कैपिटल आर होगा, एंड ये एक कुछ मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पर वही बात होगी कि जो आई जी है इट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आई जी यहाँ पर क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट। एंड अंदर क्या होगा, आई जी इज इक्वल टू जी एम बाय, मान ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, राइट। सो इट विल बी बाय, यू कैन से इट एज जी, दैट सरफेस पे कितना है, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू द क्वांटिटी व्हाट, 1 माइनस एक्स बाय आर, ये बनेगा, करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। अच्छा अच्छा, यहाँ से अगर आपको पोटेंशियल में क्या निकालना हो, कैसे आप लोग निकालेंगे, इसका जस्ट आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं एंड इसमें से आप लोग डायरेक्टली पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड ऑफ कोर्स एक फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल का इनसाइड दिस स्फीयर, एंड आई वोंट रिकमेंड यू टू रिमेंबर इट, यू कैन डिराइव इट इजी, राइट। सो आप इससे डेरिवेशन भी इसका कर सकते हैं इजी, राइट, इफ यू नो दिस आईजी वैल्यू एंड ऑल, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। तो मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। अच्छा एक आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये क्या होता है देखते हैं। तो एक अगर प्लेनेट है, एक प्लेनेट है आपके पास, मान लीजिए ये एक प्लेनेट है मान ले रहे हैं, एंड ये एक सैटेलाइट है उसका, एंड वो उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन इसके पास कुछ होगी, कुछ वो सब होगा। तो हम लोग वही कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। तो दिस इज आवर प्लेनेट, ओके, ये हम लोग का प्लेनेट एक हो गया, राइट। एंड एक इसका सैटेलाइट हो गया, एंड इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इन दिस स्फीयर, इन दिस सर्कल, यू कैन से, ओके। सो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आर होना चाहिए, आर मान लिया मतलब। तो बेसिकली यहाँ से इसका जब हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, वो कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, तो जी एम, इसका मास एम है, इसका मास स्मॉल एम है, एम बाय आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए। दिस इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला, राइट। So we got gm by r is equal to velocity square. So we got v is equal to root gm by r. अच्छा, हम लोग को वेलोसिटी मिल गई। क्या हम लोग यहाँ से टाइम पता लगा सकते हैं, मतलब स्पीड पता चल गई, ऑर्बिटल स्पीड पता चल गई, यहाँ से हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे, वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय वेलोसिटी होता है ना, मतलब वेलोसिटी इक्वल 2 पाई r बाय t होना चाहिए था यहाँ पर, स्पीड बेसिकली। तो ये बनेगा, hence we get 2 पाई r by the speed is equal to, बेसिकली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 पाई आर, वी की वैल्यू क्या है, रूट जी एम बाय आर। सो वी गेट 2 पाई बाय रूट जी एम इंटू द क्वांटिटी आर टू द पावर 3/2, ये बनेगा। सो वी कैन सी दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फ्रॉम दिस, टी वाज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, so we got t square is proportional to r cube, right, and it is a really awesome expression which you should remember always, right, okay। तो यहाँ से ये बात होगी कि हम लोग यहाँ से इसकी वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बात तो यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कहूँ निकालने को तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अच्छा, हाफ मास, वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी इज दिस एक्सप्रेशन, दैट इज स्पीड बेसिकली, जी एम बाय आर, राइट, ये बनेगा। तो इट बिकम्स जी एम बाय 2r, ये बनेगा उसका काइनेटिक एनर्जी, राइट। एंड यू क्या होगा, इट इज नेगेटिव जी एम बाय आर होता है, ये भी सही एक्सप्रेशन है। हेंस जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो के प्लस यू होती है, विच इज इक्वल टू जी एम बाय 2r माइनस जी एम बाय आर। सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम बाय 2r, राइट। So this is the total energy, that is k plus u over here, that is it is equal to negative gmm by 2r, right. This is the expression, okay. So this was basic about orbital velocity. Now let's discuss that question which I was going to tell you. Let's discuss that. Suppose this is a circle and you have 4 masses
like this, like this, uh, like this, and this one. Yeah, such that they form a square, right? And suppose they have masses m, m, and m, right? Okay. And you are given that the radius of this sphere or this circle is r, right? Okay. So the first thing you have to find is the gravitational potential energy. The second, you have to find the gravitational force, gravitational force, gravitational force over here, and then you will have to find its velocity, orbital speed you have to find, right? So हम लोग एक ही क्वेश्चन से सब चीजें यहाँ पता लगा सकते हैं. सो लेट्स डू दिस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब, अच्छा पहले देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी आती है. तो इसमें कितने पेयर बनेगा हमें देखना पड़ेगा. देयर आर 4 masses and out of 4 we have to choose only 2, so we want 4c2 pairs. It is equal to 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial, which is equal to 6, right? अरे मतलब अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 में से 2 को चूज करना है, दो की तो पोटेंशियल एक बार निकालेंगे ना, तो 4 में से 2 को चूज करना है तो 4c2 हुआ. 4c2 मतलब दिस क्वांटिटी. इसे बहुत लोग ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं n इंटू n माइनस 1/2. सो n को अगर आप 4 पुट करोगे, 4 इंटू 3 12, 12/2 6, तो 6 पेयर यहाँ बनेंगे. तो पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बनेगा, चौथा पेयर ये बनेगा, राइट? एंड ये बाकी 2 पेयर बन जाएंगे, राइट? अच्छा, उससे पहले हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना. तो सिंपल है, ये भी r है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हो जाएगी r√2 हो जाएगी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना बनेगा, माइनस gm स्क्वायर. अरे क्योंकि नेगेटिव gmm बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, r√2 बनेगा. ऐसे 4 पेयर है, 4 बनेगा. एंड 2 ये पेयर है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, माइनस gmm बाय 2r इंटू 2 पेयर है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, नेगेटिव gm स्क्वायर बाय नेगेटिव 4 बाय r√2 माइनस gm स्क्वायर बाय 2r. ये बनेगा एक्सप्रेशन. अच्छा, ये बन गया. तो ये हम लोग की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? अब फोर्स कैसे पता लगाएंगे किसी एक पे, वो भी देखते हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इट विल बी आर, राइट? तो ये कैलकुलेशन एरर होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके? बट आई विल ट्राई कि कोई एरर ना हो. बेसिकली मेरा मतलब है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, ना कि मैथमेटिक्स यहाँ चेक करने का. वो हम लोग बाकी लेक्चर देखते ही हैं, ओके? सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है, दैट इज इनफ फॉर मी, ओके? लेट्स इरेज दिस. अच्छा, अब इसका फोर्स कैलकुलेट करते हैं. मान लीजिए ये वाला मास है, तो इस पे 3 तरह से फोर्स लग रहा है, राइट? ये इधर है ना, यहाँ पर, राइट? अच्छा, ठीक है. तो ये मास m है, तो इस पे एक इधर फोर्स लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, राइट? तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं, इसे F3 मान लेते हैं. सही है, ओके? तो F1 क्या होगा, gm स्क्वायर बाय व्हाट, बाय r√2 होल स्क्वायर बाय 2r. F3 क्या होगा, gm स्क्वायर, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, राइट? gm बाय r√2 स्क्वायर अगेन, सो इट इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय 2r. ये भी बनेगा 2r स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर बनेगा. अच्छा, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है. ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है. दोनों का मास इक्वल है, दोनों का फोर्स इक्वल, तो इन दोनों जो इक्वलेंट आएगा वो इसकी लाइन के अलोंग ही आएगा. F12 नेट वी कैन से F12 नेट, ओके? व्हाटएवर, सॉरी 13 नेट, ओके? यू कैन से समथिंग लाइक दिस, और यू कैन से F4 टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. F4 कह दीजिए, बात वही है. तो जो इस पे F, इन दोनों का इक्वलेंट क्या बनेगा, gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर √2 बनेगा. करेक्ट है? अरे वेक्टर है ना, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं. F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बनेगा, उसका अंडर रूट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो √2 आ जाएगा. सिंपल सी बात है. अरे बता दे रहा हूँ, F4 इज इक्वल टू रूट, ठीक है, बना रूट F1 स्क्वायर प्लस रूट F2 स्क्वायर, मतलब F1 F2 बनेगा. तो ये वैल्यू क्या बनेगी, gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये बनेगा.
तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो जी एम स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस रूट वन प्लस वन, सो इट विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर रूट टू, ये बनेगा। अच्छा, ये सब फोर्स आ रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बन गया। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2। F2 क्या होगा, जी एम स्क्वायर बाय डिस्टेंस क्या है 2r है, तो 2r का स्क्वायर, इट विल बी जी एम स्क्वायर बाय 4r, जी एम स्क्वायर बाय 4r, एंड इस पे अब जो नेट फोर्स लग रहा होगा इट विल बी इक्वल टू F2 प्लस F4 बनना चाहिए, सही बात है। अरे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने फोर्स निकाला F1 F3 निकाला, इन दोनों का नेट किया, नेट करने इसके लाइन के अलॉन्ग आया, लाइन के अलॉन्ग आया तो F2 प्लस F4 मैंने कर दिया, तो वहां से नेट फोर्स मिल गया हम लोग को, सही है, ठीक है। तो क्या बनेगा, जी एम स्क्वायर बाय 4r प्लस प्लस द क्वांटिटी जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर रूट 2, ये बनेगा। अच्छा, तो ये जी एम स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बनना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, हाँ, 2r स्क्वायर इंटू द क्वांटिटी 1/2 प्लस रूट 2 बन गया, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया नेट फोर्स का, राइट, करेक्ट है ना। जी एम स्क्वायर बाई ये कॉमन ले लिया, 1/2 यहाँ बनेगा एंड वहाँ पे हाँ रूट 2, सही है। तो ये दोनों तो हो गए, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर दो mv स्क्वायर बाय आर से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ये लग रहा है, तो इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ रही है, तो यहाँ से हम लोग ये कर नहीं सकते डायरेक्टली कि जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, राइट, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल हो गया, तो जी एम बाय 2r, और यू कैन से जस्ट स्क्वायर रूट ले लेते हैं डायरेक्टली, जी एम बाय 2r इंटू द क्वांटिटी 1/2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू द वेलोसिटी, द ऑर्बिटल स्पीड, राइट। यहाँ से मिल गया एक्सप्रेशन, ये ऑर्बिटल स्पीड आ गई। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड ऑफ कोर्स एक केपलर्स लॉ भी होते हैं, मतलब 3 लॉज हैं। तो बेसिकली मतलब पहला लॉ है कि मतलब सन एक फोकाई पे लाई करता है, दूसरा लॉ है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एंड तीसरा लॉ है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब वही है, वहाँ पे आर मेजर एक्सेस का रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है बेसिकली, राइट। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग को पता है, ठीक है, वो ज़्यादा उससे कुछ बताने लायक नहीं है, राइट। So this was the complete lecture, and I hope so that you enjoyed this lecture. If you did enjoy this, then please do like, share, subscribe my channel, and please support this video. And if you did enjoy this lecture, then you have to do this question also. Instead of m, let's assume this is 2m, and this is 4m, and this is 5m. Now solve this problem also. Bye bye. Take care.